Good morning, student. Welcome to St. Angel's online classes from home. Dear student, today we have chapter 1, The Lost Child of second book, Moment, class 9th. Dear student, before starting this chapter, let's see what is there. There is a small introduction that is given over here. A child goes to a fair with his parent. When we see, जब हम देखते हैं the lost child, the child who has lost, खोया हुआ बच्चा, that is the title of this chapter. And a child goes to a fair with his parents. जो child होता है वो कहाँ जाता है? He goes to fair, वो एक मेला में जाता है with his parents, and he is happy and excited and want the sweet and toys. Yes student, he is really very happy, excited है, चाहता है क्या करना? He want to buy some sweets and toys जो वहाँ पर डिस्प्ले किए जा रहे हैं on various shops. But his parents don't buy them for him. लेकिन जो parents होते हैं स्टूडेंट, they are not able to buy those toys. वो उन जो toys हैं उन्हें उसके लिए नहीं खरीद पाते हैं. Why then does he refuse when someone else offer them to him? और फिर ऐसा क्यों होता है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति उसे ऑफर करता है वही toys and sweets, तो वह बच्चा मना कर देता है. Let's see what is there in this story. So we can see it was the festival of spring. As we can say, the spring season had just started, so it was the time of festival. यह त्योहारों का समय था जैसे ही बसंत ऋतु की शुरुआत हुई थी. From the wintry shades, dear student, we have to understand, from the wintry shades of narrow lane, we can understand in the winter season. In the winter season, the narrow lanes were full of sand. जो narrow lane थी, जो पतली छोटी छोटी गलियां थी, जो सड़कें थी, वो क्या थी? They were full of sands. As the winter season had just ended, जैसे कि winter season के अभी अंत हुआ है. Narrow lanes and alley emerged of gaily clad humanity. Alleys, dear student, हम यहाँ पे बात करते हैं narrow street. ये भी गलियों के लिए यूज किया गया है. Emerged, come out, उनसे बाहर आता है. अगेली हम लोग बात करते हैं हैप्पीली क्लैड. ये स्टूडेंट, हैप्पीली क्लैड यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया ड्रेस ह्यूमैनिटी, वी के इट रेफर्स टू द ऑल द ह्यूमन बीइंग. मीन्स आफ्टर ending the winter season, as soon as the spring start, so people came out of their house to enjoy the fairs and all the festival. Some walked, some rode. Dear student, there were many people. उनमें से कुछ लोग क्या कर रहे थे? Some was walking, कुछ walk पैदल चल रहे थे. Some rode on horse, कुछ horse पर riding कर रहे थे. Others sat being carried in bamboo and bullock cart. और कुछ लोग क्या कर रहे थे? जो बैठे थे उनको लाया जा रहा था इन ए बैम्बू, हम लोग बांस, और बुलक कार्ट, वी कैन से ऑक्सन कैरियर, जैसो जो बैलगाड़ी होती है, कुछ लोग उसमें बैठकर आ रहे थे. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लैग. हम देख सकते थे एक छोटा सा लड़का क्या करता है? रैन बिटवीन हिज फादर लैग, अपने जो पापा है उसके पैरों के बीच से दौड़ता है. ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. ब्रीमिंग ओवर, स्टूडेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड यहाँ पे टू बी फुल ऑफ, लबालब, किसी से, ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, वह हंस रहा है, एंड ही इज एंजॉइंग दैट मोमेंट, वह फेयर के उस मोमेंट को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है. वट एवर ही इज सीइंग, जो भी वो चीजें वहां पर देख रहा है, ऑल द टॉयज एंड ऑल दैट थिंग, दे आर अट्रैक्टिंग हिम, वो उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है. सो इन दिस वे वी केम टू नो दैट द लिटिल चाइल्ड वेंट टू अ फेयर with their with his parents. Let's see. Come child come. The student called his parent. जैसे कि इसके पेरेंट्स है वो उसे बुलाते हैं कि बेटा जल्दी आओ. As he lagged behind, fascinated. जैसे कि he lagged behind, we have to understand meaning. What is the meaning of lag behind? To go too slowly. वह बहुत धीरे धीरे चल रहा है और पीछे रह जाता है. Fascinated by, attracted by the toys in the shop. जो टॉयज हैं जो शॉप्स पर डिस्प्ले हो रखे हैं वो उनसे अट्रैक्ट होता है और उन्हें देखते देखते थोड़ा सा स्लो चलने लगता है. दैट लाइन द वे. और जो कहाँ पर है? ऑल दैट लाइन द वे, दैट आर ऑल ऑन द वे, जो उस रास्ते में रखे हुए हैं जहां पर वो अपने फादर के साथ, मदर के साथ जा रहा है. ही hurried towards his parents. डे स्टूडेंट, जैसे ही देखता है कि मम्मी पापा थोड़े आगे निकल गए हैं, सो ही hurried, वह जल्दी करता है, towards his parents, अपने पेरेंट्स की ओर. Yes, dear student. His feet obedient to their call. जो उसके जो पैर हैं, obedient we have to understand, who obey, जो obey करते हैं किसकी? To the call of
हिज फादर, जब भी उसके पिता बुलाते हैं तो वो बहुत जल्दी उनकी बात को मानता है और उनकी ओर दौड़ने लगता है। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग, लेकिन जो स्टूडेंट, जो उसकी आंखें हैं, दे आर स्टिल लिंगरिंग। जो स्टूडेंट यहाँ पर स्टे फॉर ए टाइम, लिंगरिंग रुक रुक कर चलना, वो अभी भी रुकी हुई है कहाँ पर, और टुवर्ड्स ऑल दोज टॉयज, उन सभी टॉयज की ओर, ऑन द रिसीडिंग टॉयज, रिसीडिंग वी कैन अंडरस्टैंड, जो टू मूव बैक यार्ड, जो पीछे छोड़ता हुआ जा रहा है, उन टॉयज पर अभी भी उसकी आंखें फिक्स है। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, जैसे ही वह आता उस जगह जहां पर जो पेरेंट्स थे वो क्या कर रहे थे, दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, वो रुके हुए थे क्या करने के लिए, उसका वेट करने के लिए। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, वह नहीं दबा पाता द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, अपने जो हार्ट की जो इच्छा है उसे वह नहीं दबा पाता। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर, इवन दो, जबकि ही वेल न्यू, वह अच्छे से जानता है, द ओल्ड, पुरानी, कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल, दैट हिज पेरेंट्स जो हैं वो क्या करने वाले हैं, वह उसे मना करने वाले हैं। एंड ही कैन सी दैट रिफ्यूजल इन देयर आइज, वह उनकी आंखों में उस रिफ्यूजल को देख सकता है। मीन्स इफ ही विश टू से, अगर वो चाहता है, अगर वो कहे अपने पेरेंट्स से कि उसे खिलौना चाहिए, तो ही ऑलरेडी न्यू द आंसर, उसे पहले ही जवाब पता है, और वो क्या है, वो रिफ्यूजल है, वो मना है कि जो मम्मी पेरेंट्स जो हैं वो उसे खिलौना प्रोवाइड नहीं करा सकते। आई वॉन्ट द टॉयज ही प्लीडेड, ये स्टूडेंट, लेकिन थोड़ी हिम्मत करने के बाद जो बच्चा है उसने क्या किया, ही रिक्वेस्टेड, आई वॉन्ट द टॉयज, मुझे जो टॉय हैं वह चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आईड, जो पापा थे डियर स्टूडेंट, ही लुक्ड एट हिम रेड आई, वह बहुत ज्यादा गुस्से में, रेड आइड, गुस्से में उसकी ओर देखते हैं। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, अपने पुराने टायरेंट डियर स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया, इट इज फॉर क्रूअल, क्रूअल वे, जो पुराना क्रूअल थोड़ा तरीका था उससे। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, हिज मदर डियर स्टूडेंट, सी मेल्टेड बाय, मेल्टेड यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया, इन्फ्लुएंस, प्रभावित होती है, थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, बाय द फ्री स्पिरिट, बाय द चाइल्ड्स, जो बच्चा है उसकी विश से, ऑफ द डे, एंड वॉज टेंडर, सी वॉज सॉफ्ट एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और वह उसे क्या करती है, उसे उसकी जो अपनी जो उंगली है वह उसे पकड़ाती है। लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, कि देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है, इट इज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और वह उसका ध्यान जो है डियर स्टूडेंट वह डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। कैसे, कि इट इज ए फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, तुम देख सकते हो यह फूलों वाला मस्टर्ड फील्ड है, मस्टर्ड का जो खेत है, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट इज, और इतना पीला है जैसे कि क्या, इस खेत में जो गोल्ड है वह पिघला हुआ गोल्ड है। इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल एंड माइल ऑफ इवन लैंड, और ये फैला हुआ है कहाँ तक, माइल एंड माइल ऑफ इवन लैंड, माइल्स माइल्स तक, जहां पर भी नजर जाती है यू कैन सी दैट वन। A group of dragonflies were bustling. Dear student, we can see a group of dragonfly, यहाँ पे क्या होता है, it is an insect with long thin body, एक insect होता है जिसकी लंबी सी पतली सी बॉडी होती है, बड़े बड़े पंख होते हैं। That dragonfly were bustling about in their gaudy purple wings, जो क्या कर रहा था, bustling कर रहा था dear student, moving here and there, यहाँ वहाँ उड़ रहा था, in their gaudy purple wing, अपने जो ब्राइट चमकीले पर्पल कलर के जो विंग्स हैं उनके साथ में। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन बैक टू बी, इंटरसेप्टिंग डियर स्टूडेंट, ही वाज लुकिंग फॉर द फ्लाइट ऑफ लॉन बैक बी और बटरफ्लाई, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, और वी कैन सी, वहां पर हम देख सकते थे क्या, जो बीज है, मधुमक्खियां हैं, जो बटरफ्लाईज हैं, उनको भी इन सर्च ऑफ किसकी खोज में, स्वीटनेस, मिठास की खोज में, फ्रॉम द फ्लावर। द चाइल्ड फॉलो देम in the air and his gaze till one of them would still in its wings, जो बच्चा है he followed them in the air with his gaze, वह उन्हें हवा में उनके पीछे दौड़ता है, थोड़ा सा उन्हें फॉलो करता है, till one of them would still its winged, जब तक कि उनमें से एक क्या ना करे, still its wings and rest, जब तक उनमें से एक अपने पंखों को रोके और बैठ जाए। he would try to catch it, वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, लेकिन ये क्या, जैसे ही वह उसके पास जाता है तो यह फ्लैपिंग बहुत तेजी से स्विंग करते हुए वहां से, अपने पंखों को फ्लैप करते हुए वहां से उड़ जाता, अप इनटू द एयर। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कोट इट इन हिज हैंड, जब लगभग उसे लगता है कि उसने उसे पकड़ ही लिया था, लेकिन तभी क्या होता,
जो बटरफ्लाई थी, जो ड्रैगन फ्लाइज था, वह वहां से उड़ जाता। देन हिज मदर गेव ए क्वेश्चनरी कॉल, और तभी जो ममा है, सी आस्क हिम, वह उसे बुलाती, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, की बेटा जल्दी आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ। He ran towards his parents gaily and walked abreast. और स्टूडेंट इन दिस वे, जो छोटा बच्चा था वो क्या करता, he ran towards his parents, अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी ओर दौड़ता हैप्पीली, एंड वॉक abreast, और चलने लगता साइड बाय साइड ऑफ them for a while. Being, however, soon left behind, attracted by the little insect. However, soon left behind, और पीछे छूट जाता ऐसे ही जैसे पहले था, अट्रैक्टेड बाय, किससे, अट्रैक्ट होकर छोटे छोटे इंसेक्ट से, एंड वॉर्म अलोंग द फुटपैथ, जो क्या कर रहे थे, जो कीड़े मकोड़े जो थे कहाँ, अलोंग द फुटपैथ, दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, जो क्या कर रहे थे, दैट वर कमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, जो आ रहे थे बाहर कहाँ से, अपने हाइडिंग प्लेसेस से, टू एंजॉय द सनसाइन, क्या करने के लिए, सनसाइन को एंजॉय करने के लिए। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रोव, जो फिर दोबारा से जब देखते उसके पेरेंट्स की बच्चा इन सब चीजों से अट्रैक्ट होके पीछे रह गया, उसे फिर बुलाते, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, उसके पेरेंट्स उसे बुलाते फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, ग्रोव डियर स्टूडेंट अ ग्रुप ऑफ ट्री, एक पेड़ के जो पेड़ों का जो ग्रुप होता है उसकी छाया में खड़े होकर वो उसे बुलाते। दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ द वॉल वेल, वो बैठ जाते अपने आप कहाँ पर, ऑन द किनारे पर, ऑफ द वेल, जो कुआं है, ही रेन टुवर्ड देम, एंड इन दिस वे, जो चाइल्ड होता वह उनकी ओर दौड़ जाता। डियर स्टूडेंट, दिस वाज द वे व्हेन जो चाइल्ड था, ही वाज एंजॉयिंग seeing the various kind of thing in the fair with his parents. So I'm going to stop the first part of this chapter over here. I hope that you will enjoy it. Thank you. Have a nice day.